My name is Vanaja. I am from New Jersey, USA. I have diagnosed second stage of breast cancer in November end. Um, Later, I went to doctor. They said I had to go through breast removal surgery and chemotherapy and radiation also. But I got my guru's suggestion that I should not go with any medical treatment like allopathy, Ayurvedic, and homeopathy. So natural food say natural. I had to cure it with the natural food only. So when I searched in YouTube and everywhere, I found ANDS diet system. Then one of my friend he contacted Sureshji. Then decided only for the first time itself we decided to come here in to the Himachal Pradesh. I came here on January 8th. It's already 16 days. Then I started diet on vegetarian raw diet for 1 week. Mm, yeah, 1 week. Later, started diet on liquid. Later, started dry fasting for 2 days. Um, Yesterday, I did 3 days of dry fasting. I see lot of changes in myself. Not only cancer lump on the breast, mental clarity, energy wise, my whole body, I feel more cleansing feeling. Each and every cell is getting more cleansing. Emotions also getting control. Fears also gone. More positive thoughts. Not only cancer, lot of benefits. And also this cancer lump is getting more softer. I see lot of changes already. Um, yeah, I lost 6 kgs weight in 15 days. I started this Nirjal at home also. There also I lost 5 kgs. Overall, I lost 10 kgs so far. Thank you, Anandima. Thank you, Sureshji. This is a Now, wonderful now diet. now in which center you are here Right now, and I'm in Haridwar. Actually, first time I went to Himachal Pradesh center, but it was so cold, so healing will be slower. So Suresh ji brought me here in Haridwar. I'm right now in Haridwar center with Anandima, beautiful Anandima, happy Anandima. She's giving lot of energy and happiness to everyone and and what you are love. doing here? What you are doing here? You please convey it to the sadhak. Only you are doing advanced new diet system, food changing. Yeah, what you are doing here? Others What I'm doing to others. Yeah, we are meditation. doing meditation twice in the morning. It will be almost 1.5 hours, 6 hours, 6 to 7:30. Actually, 1 hour meditation and half hour for exercise, and evening also we are doing. Um, and I'm spending more time in the sunshine for sunbath. Yeah, and having very good company with everyone, positive thoughts and happy, loving people. That love itself is healing everything, I feel. And what's your number? You, if you want to tell, then tell. Uh, It's US number, Maji. Can I okay. tell? You may tell. Okay, You my phone number is 732. You have to add +1 732 823 8242. because it is also a service to mankind.
Yes, if ma'am. someone call you, then you can guide her or him, and Yeah, you heal quickly. yeah, definitely. Tap But Seva Simiran. Tap is Seva and Simiran. This sadhana is this. Hmm? yeah, definitely. And only WhatsApp call. ओके, थैंक यू। मैं Thank you, आपका Maji. हिंदी में ट्रांसलेट कर लेती हूँ थोड़ा, Sure, Maji. काफी Thank you. ज्यादा हिंदी में है। तो मनोजा जी न्यू जर्सी से आए हैं, और वो हिमाचल प्रदेश में 8 जनवरी को पहुंचे थे। और इससे पहले उनका डायग्नोसिस हुआ ब्रेस्ट कैंसर की, और उनका सेकेंड स्टेज थी। तो उन्होंने होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक में नहीं जाके सीधा एनडीएस पे, एएनडीएस पे आने की उन्होंने अपनी डिसीजन लिए घर में, अमेरिका में। और फिर वो अपना सुरेश बेटा जो 4 स्टेज कैंसर से अपने को क्योर करे हैं एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के, और उन्हीं के गाइडेंस में गुरुजी की कृपा से काफी साधक कैंसर का कर भी रहे हैं और काफी ठीक भी हो गए हैं उनका गाइडेंस से। और वो हिमाचल प्रदेश में भी सेवा देते हैं, और वही, और काफी लोगों का सहयोग से हिमाचल प्रदेश एक सेंटर हुआ तप सेवा सुमिरन का, और हमारा हरिद्वार में भी है। तो उनको कॉल करे वनजा जी, और फिर बात हुई, और फिर उन्होंने पहले हिमाचल में आए थे, और हिमाचल में ठंडी बहुत थी, -डिग्री में टेम्परेचर थी। तो वहां रिकवरी स्लो होगी, यही सोच के सुरेश जी थोड़ा हरिद्वार में अभी लाए, और उनका पूरी तरह से गवर्नमेंट फूड घर से ही शुरू कर दिए थे, रॉ फूड पे। और उसमें उनका 5 किलो वेट्स ऑलरेडी कम हो चुकी थी। और यहाँ आके उन्होंने फर्स्ट 1 वीक उन्होंने गवर्नमेंट फूड पे रहे, मतलब सवेरे से शाम लिक्विड, और शाम को सिर्फ फ्रूट्स पे थे। और बाकी हरिद्वार में आने के बाद उन्होंने पूरी तरह लिक्विड पे आ गए। और पहला 2 डेज उन्होंने ड्राई फास्टिंग करे, निर्जल उपवास, ना खाना ना पीना, पहला 2 दिन। फिर उसके बाद 4 डेज उन्होंने ओनली वाटर पे रहे, नारियल कोकोनट वाटर और लेमन वाटर, विदाउट शुगर, विदाउट सॉल्ट, विदाउट गुड़, जो आप ये सब नहीं डाले उन्होंने कुछ भी, और सिंपल नींबू पानी एक बार लिए, और बाकी नारियल पानी 4 डेज। तो 2 डेज ड्राई फास्टिंग, 4 डेज ओनली कोकोनट वाटर, एंड फिर 3 डेज कंटिन्यू ड्राई फास्टिंग करे। और आज ही उन्होंने उनका उपवास, निर्जल उपवास खोले थे, और आज उन्होंने ओनली कोकोनट वाटर पे रहे। मतलब 2 डेज, 3 डेज, 5 डेज ड्राई फास्टिंग, और 4 डेज वाटर फास्टिंग, और 1 वाटर, 5 डेज वाटर। तो 5 डेज ड्राई फास्टिंग, 5 डेज उनका वाटर पे हुआ, 10 डेज ऐसे उन्होंने अपनी रहे। और यहाँ पे आने के बाद भी उनका 5 किलो वेट कम हुआ, टोटल 10 किलो वेट कम हुई। लेकिन वो बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, कोई उनको कमजोरी नहीं आ रही है, और बहुत हैप्पी हैं। और उनकी लम्प्स भी सॉफ्ट हो गई है, उनका जो गांठ थी वो थोड़ा कम भी हो गई है। और उन्होंने हर समय पॉजिटिव रहते हैं, और नेचर के साथ रहते हैं। सुरेश बेटा उनको जैसा गाइड करते हैं सनसाइन में, और हवा, मतलब खुले हवा आकाश के नीचे ज्यादा रहते हैं, और मेडिटेशन करते हैं। और उनका मेडिटेशन में बहुत रुचि भी है, और अपनी हर समय वो उसी में रहते हैं, और बहुत पॉजिटिव है। तो और उनका फियर, डर था जो वो दूर हो गई, और उनको कोई टेंशन नहीं हो रही है, और बहुत पॉजिटिवनेस से उनका चल रही है जर्नी। और बहुत खुशी की बात है कि बेटी ने अपना मन में ठान ली है कि मैं
2 मंथ्स में मैं ये मेरा कैंसर को हरा सकती हूँ, मतलब कैंसर से विजय प्राप्त कर सकती हूँ। उनका इतनी विल पावर है कि 2 महीने में मैं ठीक हो जाऊंगी बोल के। ऐसे 3 मंथ्स के लिए वो आए हैं, उससे भी ज्यादा रह सकते हैं, उनका स्थान है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो अपनी माइंड में ऐसे संकल्प करे हैं कि 2 महीने में मैं जरूर कैंसर को हरा दूंगा। क्योंकि हर समय वो कैंसर नहीं सोचते इसको, वो सोचते हैं ये, मतलब ये एक प्रभु का गिफ्ट है। अगर ये नहीं आता तो वो इसी तप सेवा सुमिरन में आ नहीं पाते, मतलब कुक फूड नहीं छोड़ते। और मेडिटेशन ज्यादा अच्छा नहीं होता, अगर कुक फूड खाएंगे तो मेडिटेशन में भी नहीं आएगी। उनका जो सेल्फ रियलाइजेशन मनुष्य जीवन का एम है, अल्टीमेट गोल की आत्मा अनुभूति, और ये तप सेवा सुमिरन भी आत्मा अनुभूति को ही लेगी। तो ये इनको जो इच्छा थी, उनका एम, वो उनको सपोर्ट करेगा। और उसके लिए उन्होंने गॉड ने उनको यही चीज दी है कि तू ये आएगी तो तू बदलेगी। तो एक गुड साइन है बोल उनको, यही उनका खुशी है कि अगर ये नहीं आता तो आज यहाँ हम नहीं पहुंच पाते। तो इतनी पॉजिटिव है ना, कोई उनको घर का टेंशन है, सर्विस करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ वो नहीं कर रहे हैं, वहां यहाँ सिर्फ ओनली एंड ओनली अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, जो स्पिरिचुअल बुक्स स्वाध्याय कर रहे हैं। और बाकी उनकी मेडिटेशन में टाइम जाती है और नेचर पे जाती है। तो इस तरीके ने इन्होंने अपनी जर्नी आगे लिए हैं और रिजल्ट भी आ रही है। इसके लिए बहुत बहुत परम पूज्य सद्य विभीचान गुरु जी को थैंक यू है। उन्होंने जो सुरेश जी को नया जिंदगी दिए इस रास्ता से, उन्हीं की वजह से आज बाकी साधक भी जो कर रहे हैं इस वे से, को ये नहीं सोच रहे कि मैं कैंसर को ठीक करना है। वो ये सोच रहे हैं मुझे इस मेडिटेशन में जाके मुझे सेल्फ रियल अपनी हर समय एक हैप्पीनेस, हर समय एक वो स्थिति ध्यान घटित हर समय हो रही है उनका। तो वो उनका एम है, उनका एम बॉडी तक नहीं है। बनंजा जी का एम शरीर तक सीमित नहीं है, बॉडी में नहीं रहा है। उनका एम बड़ा है, गोल है बड़ा है। अगर हम गोल बड़ा रखते हैं तो ये बाई प्रोडक्ट है, यूं यूं निकल जाती है। तो ये इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन हम गोल छोटा रखते हैं, मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा क्या, मेरा बच्चा का क्या होगा, मेरा पति का क्या होगा, मेरा पत्नी का क्या होगा। कितने फोन आते हैं ऐसे, सुरेश जी को भी मुझे भी, हम सुनते रहते हैं। वो बोलते हैं मेरे पत्नी को ठीक कर दो। कोई आज भी एक जन का फोन आया था सुरेश जी को, मैं सुन भी रही थी। मैंने बोली भी उनको कि मेरे साथ इनकी बात हो चुकी है, कि कैसे होगा, बहुत परेशान है हम, बच्चे छोटे हैं। मतलब हमारा एम छोटा दायरा में नहीं होना चाहिए। हमारा ये रास्ता ये नहीं है, ये जो भी आया है उसको बता भी नहीं रहे हैं। वो बोल रहे थे, और सुरेश जी के साथ मैं सुन रही थी पास में, मुझे भी यही बात बताए थे कि मैं मेरा पत्नी को बताया नहीं वो कैंसर हुआ है बोल के, क्योंकि वो शक हो जाएगी, ये हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हमको बीमारी, मतलब वो बीमारी तो डॉक्टरों ने नाम दिए हैं, कुछ भी बीमारी नहीं है। हमारा गलत आदत के कारण, गलत आहार के फूड के कारण, एनिमल प्रोडक्ट के कारण हमारे अंदर में गंदगी जमा हो गया है। लेकिन डॉक्टरों ने उनको नाम देते हैं, लेकिन उसको भी हम नहीं बताते हैं। जो जो पेशेंट है उसको बता नहीं रखे, छुपा के रख रहे हैं। छुपा के रखेंगे तो कैसे उनका माइंड में, मतलब उससे लड़ने की कैसे दम आएगा। उनको लड़ना है, डिफीट करना है उसको, तो उसको बताना चाहिए। लेकिन उन्होंने बताते नहीं है। तो ये सब बातें हुई थी, तो सुरेश जी भी बताए थे, बोले थे कि आप उनको बताना। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू बनजा जी को, इतनी सुंदर अपनी एक्सपीरियंस सुनाए उन्होंने। अभी सबको समझ आ गई होगी कि इतना बढ़िया से हैप्पी, हर समय हैप्पी रहते हैं। यहाँ गंगा जी के किनारे भी जाते हैं, मेडिटेशन भी वहीं पे भी बैठ के करते हैं। तो
आप लोग भी इनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर हमारा गोल बड़ा है, अगर हमारा एम बड़ा है, कि हमारा एम ये है, मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, अब मनुष्य जीवन पशु से क्यों बेटर बोला गया है, मतलब जानवरों से सभी शास्त्रों में लिखा गया है कि बड़े भाग मानुष तनु पावा सुरदुर्लभ सव ग्रंथ न गावा। मनुष्य जीवन पाना बहुत कठिन है, बोला क्यों बोला गया? क्या खा पी के ऐसे चले जाने के लिए, बच्चे पाल के चले जाने के लिए, या ऐसे पोता देखने के लिए, पोती देखने के लिए, शादी कराने के लिए, नौकरी के लिए, खाली इसके लिए? इसके लिए खाली ये छोटा एम रखना है हमको, कि हमारा किस लिए मनुष्य जीवन को बड़ा बोला गया? नहीं तो वही चीजें आहार निद्रा भय मैथुन ये पशु भी कर रहा है, इंसान भी कर रहा है, फिर इंसान क्या ज्यादा, इसका क्या मतलब, क्यों उनको ज्यादा बेटर बोला गया? इसीलिए बोला गया कि इंसान ही ऐसे एक प्राणी है जो पूरी प्रभु भक्ति में लग जाएगा, जो हर समय उसी याद में खो जाएगा, प्रभु की याद में हर समय खो जाएगा, कुछ अपनी होश ही नहीं रहेगी। इसके लिए मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन हमारा एम ये नहीं है। इसीलिए हम आग में पका वाला भोजन भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि एम छोटा है हमारा, शरीर ठीक हो जाए, खाली शरीर ठीक हो जाए, फिर हम खाए पिए, फिर ऐसे ही मस्ती भोगी जीवन जिए, यही हमारा एम है। तो सभी को मेरा नम्र निवेदन है, जितने भी ज्वाइन हुए हैं, एम को बड़ा रखिए, हर समय गोल बड़ा होना चाहिए, एकदम पिन पॉइंट, कि मेरा गोल ये है कि हर समय अपनी प्रभु प्राप्ति, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, ये अगर ये होगा तो कुछ भी असंभव नहीं है। हर समय अपनी एम आगे रहना चाहिए कि हर समय मेरा यही एम है बस। और इससे फिर भोजन सहयोग करेगा, भोजन परिवर्तन कर दिए तो आप पता लगेगा कि माइंड में क्या इफेक्ट हो रहा है फूड चेंज करने के बाद, और हमारा शरीर पे क्या इफेक्ट हो रहा है, सब चीज पता लगती है। तो आप इसीलिए गोल बड़ा करिए, जैसे हमारा बंजा बेटी करी है गोल, एकदम मेन पॉइंट, पिन पॉइंट गोल है उसकी, कि हर समय मैं मेडिटेशन का ये करूं, और हर समय मुझे बोलती है वो कि मैं दोनों चीज लोगों तक पहुंचाऊंगा, एएनडीएस के साथ मेडिटेशन, दोनों विंग है। मतलब हमारा, अगर हम प्राकृतिक आहार पे रहेंगे तो हम इस चीज को आगे दूसरी भी कर पाएंगे, दोनों एक दूसरे का परिपूरक है, एक कॉइन का दोनों साइड है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी अनुभव सुनाए, थैंक यू बेटा। आपको लोगों को प्रेरणा मिलेगी इस चीज से, यूट्यूब में अपलोड होगा, आपका एक प्लस पॉइंट यही हुआ, बड़ा सेवा में जाएगी ये भी। Thank you, Maji. Thank you so much for your blessings and your love and everything. And thank you for the translation. You told more than what I told you. Shared my experience, but thank you so much. हाँ, क्योंकि आपका मैं देखती हूँ ना, इधर गोल बड़ा है, गोल बड़ा होना चाहिए। Yeah, I हाँ। agree. Thank you, Maji. थैंक